Over to Mustafa. Thank you so much. Assalamu alaikum. It's a pleasure to be here. I'm Syed Mohammed Mustafa, and I've had the pleasure of working with, I think, almost all of you now. So it's great to be here with you. And again, this hum log ka jo mutual journey raha hai of learning, I think I've definitely been a beneficiary of it. Chahe kisi aur ka wo hua nahi ho. And it's always been a pleasure. With me, I have Mir Anwar Saab, who's again a professional who has worked extensively in the private sector. I'm sure आपने हर किसी ने सुना होगा of the company LMKT, LMKR. He's worked उनके साथ. Then he's also had I think the privilege of working with another institution जिसका आप सबने सुना होगा, Benazir Income Support Program. He was Director General of Technology. Up now he is in the private sector, but he also, I think, has an honorary position with the Pakistan Council General in Canada to support some of the activities that are going on there. I mean, more than a colleague, I think he's a great teacher जिनसे मैंने बहुत कुछ सीखा है. जैसा, to be honest, मैंने आप लोगों से भी सीखा है. When So my career, particularly on digitalization, integrated digital management, was with GIZ 6 years ago. मैंने एक report पढ़ी थी on single registries, and I still remember उस वक्त, as a young officer, informing my boss, Alexander Plushke, that this is something I want to work on. तो उसने कहा था कि आपका दिमाग खराब हो गया है, आप अपना budgetary allocation देखें, देखें ambitions क्या हैं. और अब जब मैं देखता हूँ तो she was absolutely right. I have no idea what I was thinking. क्योंकि data integrating systems is not easy. It is the most difficult thing जो अभी तक हम देख रहे हैं. But honestly, I'm so glad कि जो successes हुई हैं अभी तक, उसके अंदर all of you have been a part of those. With that, I'll actually एक तो request, Mir Sahab, are you online? So I think he is. आप उनको अगर message कर लें. Just give me a moment. मैं उनको अभी I'm just messaging. Assalamu alaikum, Mir Sahab, are you online? Um, Assalamu alaikum, Mir Sahab, are you online? जी अस्सलाम वालेकुम मुस्तफा, कैन यू हियर मी? जी sir, loud and clear. Well, not loud but clear. अब audience से मैं पूछूंगा, can everybody hear? It's a bit low. Sir, can you say again, please? अगर आप कुछ कह लें, we just want to test the audio आपकी side से. Yeah, Mustafa, it's pleasant to be here and being connected. और ये मैं सिर्फ इंट्रो के लिए लाइनें बोल रहा हूँ. I believe if you guys can hear me well. Ji sir, we can hear you now. It's much better. And All right. again, it's a pleasure having you here. Sir, I've taken the liberty of introducing you already. And with that, actually, I would like to go to the first slide जो इसकी है. This is not working. When Let's pick up from where we left off yesterday. आखिरी जो session था, one of those was on financing, right? When we were talking about financing, एक चीज जो हमें देखना पड़ेगी no matter what. जब हम पहली इकोनॉमिक्स की क्लास में बैठते हैं, it is the study of scarce resources. Resources are always going to be scarce. ये कल रात को खबर आई थी, I don't know आप में से किसी ने अगर देखी, जो लेफ्ट पे लगी हुई है, कि World Bank advises to cut government expenditure. ठीक है, this is from last night. Why is this so important? It is important because
essentially government expenditure से होता क्या है कि you are pumping money into the economy without actually increasing the number of goods and services. As a result, there is more money in the market, which is then competing for those goods and services. As a result, you get inflation. That's why the World Bank is advising. We won't go into whether this is good or bad. It is what it is. Let's look at the left. ठीक है, ये तो one can always argue कि this is, Pakistan, यहाँ पे तो मसले हैं, ये है. This is from France. वो पिछले मेरे ख्याल है 1.5 साल से सिर्फ प्रोटेस्ट ही कर रहे हैं. मैंने जब फ्रांस की खबर सुनता हूँ, या तो ग्रीन वेस्ट होती है या ऑरेंज वेस्ट होती है और टेयर गैस होती है. इस दफा क्यों टेयर गैस थी? बिकॉज इमानुअल मैक्रोन ही सेड कि मैं जो उसकी एज है, वर्किंग एज है, वो बढ़ाऊंगा, जिससे लोगों की पेंशन्स जो हैं वो एट अ लेटर स्टेज मिलेंगी. वो क्यों? बिकॉज दे रन आउट ऑफ मनी. सिर्फ दुनिया में एक ऐसा मुल्क है which has unlimited money, right? And that is the United States. Why? Because dollar is the global currency and they have a printing press, the Federal Reserve, which prints money. Even when you look at the US, एक आप कोई भी अभी अपना फोन उठा के देख लें, Kensington, Philadelphia, ठीक है, it is a cesspool. It is completely, आपको देखेंगे आप कहेंगे कि ये किस किस्म की थर्ड वर्ल्ड जगह है. Why? Because even unlimited money sometimes cannot solve problems जो होती हैं. कहने का इसका मकसद ये है कि end of the day आजकल के जो हालात हैं, there are such कि whether it is the war in Ukraine, अभी we know Middle East में जंग छिड़ी है, global trade which had pushed prosperity इतनी आगे, it is suffering. Already supply chain disruptions की वजह से we see a crunch. Abhi already the World Bank is advising to cut expenditure. Their resources are always going to be limited. What is important is that जो भी हम चीज करें, whatever we achieve, and जो भी हमारा trade off हो, it should never be at the expense of the poor, right? Now, जब जैसे डॉक्टर सुहेल कल बता रहे थे कि आप गवर्नमेंट के अंदर, प्लानिंग के अंदर, there are competing essentially priorities. Often at times, social protection उस पे top पे नहीं होगा. In that case, what do we have to do? We have to be practical and we have to make or ensure कि जो भी equity आप बनाना चाह रहे हैं, resilience बनाना चाह रहे हैं in your society and among beneficiaries, that should come from efficiency gains. Efficiency gains आपके किस तरह आते हैं? That's where you actually need an integrated social protection system. अभी जैसे मैम आप बात कर रही थी with regards to कि वो चीज़ कितनी ज़रूरी है. It is exactly that कि हमारे पास एक पूरा लाइफ साइकिल अप्रोच होती है जिसमें हमने अपनी पॉलिसीज में लिखा हुआ है कि we are going to provide cradle to the grave coverage, whether it is a woman who is pregnant and lactating or an adolescent girl or an elderly or somebody who needs to be employed in the active labor market programs के अंदर उसकी integration. पहले तो ये पता होना कि वो हैं किधर लोग. How do we find them in that particular एक जो हमारे पास morass of the population? How do we find them there? दूसरी, of course, you need उसके लिए information, you need data. जो आगे चीज आती है कि yes, ठीक है, हमें पता लग गया कि हमारे पास टोटल कुल आबादी कितनी है from let's say a census. How do we reach those particular people? Do we have their telephone numbers? Do we have, for example, आपने CNIC का यूनिक आईडी का जिक्र किया था, हमारे पास उनके CNICs हैं. Do we know उनके हाउस होल्ड में कितने लोग हैं? क्योंकि लोग आइसोलेशन में तो एग्जिस्ट नहीं करते हैं. They exist as a part of their ecosystem. And you need to know what their ecosystem is if you want to understand things. For a social protection system, agar aapne banana hai, it is essential to have an integrated management information system. So why integrated? Because it allows you to reap economies of scale. पहली जो चीज है that if we want to maintain equity, we have to go for efficiency. मुझे बताएं
Why is it that we love BISP NSER so much? Why? Because we don't have to then do the survey again and again and again. You know, जबरदस्त नहीं है कि एक एजेंसी है उसने अपना कर दिया सर्वे. Everybody in the country now knows कि कौन से हाउस या फैमिलीज गरीब गुर्बत की सतह के नीचे, कौन से ऊपर है. इमेजिन एक ऐसा और इदारा जिसके पास आई डोंट नो हर किसी के टेलीफोन नंबर्स हो. वेट, पीटीए के पास हैं सबके टेलीफोन नंबर्स. एक ऐसा इदारा जिसके पास हम जिसको मैसेज करें और वो हमें बता दे कि इस इंसान का टेलीफोन नंबर क्या है, इसका बैंक अकाउंट क्या है. वाओ, ग्रेट, वी हैव नादरा व्हिच कैन एक्चुअली डू दैट. एंड बात वहीं आ जाती है, इट इज देन अबाउट ब्रिंगिंग ऑल ऑफ दैट टुगेदर. बट जो हमें चीज पे फोकस करना है, दैट इज कि in order to achieve वही के बाद कि we have so many beneficiaries, are we graduating them out of poverty? Are we doing anything in that regard? कि जो हमारे outcomes हैं of a program वो achieve हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं, उसके लिए भी integrated management information system is required. Now, आप लोगों ने ये शायद डायग्राम देखा हो पहले और during your readings. It describes the social protection supply chain. I'm just going to go over it आपके साथ. उसमें essentially 4 चीजें होती हैं in any program in the world. ठीक है, more or less generically आप लोगों को assess करते हैं, आप उनको प्रोग्राम में enroll करते हैं, आप उनको services provide करते हैं, and then you manage the program. यहाँ पे repetition शुरू हो जाता है उसका पूरा. In order to do any of these, you need information, you need data. For example, program design करना है. Let's say एक हमें program बनाना है for the elderly, right? Elderly, जब हम program बना रहे हैं, हमें उसका budget करना होगा. जब हम PC1 बना रहे होते हैं, how much is it going to cost? लोग कितने elderly? हमें देखना होगा, for example, कि population census कितनी है, कितने लोग उसमें elderly हैं. That is one way. Another way is आपने simply नादरा से call किया कि आपके पास अभी कितने elderly हैं versus और कितने ऐसे लोग हैं जो 60 की उम्र या 65 की उम्र पे हर रोज आ रहे होते हैं इन योर सिस्टम. कितने ऐसे लोग हैं जो आपको यूनियन काउंसिल रिपोर्ट करता है कि ये तो इंतकाल कर गए. यू नीड एक डेटा सिस्टम फॉर दैट. Similarly, when we come to intake registration, इसके ऊपर बाद में we're going to come, we need a system, we need essentially exchange of information to actually get the program rolling. Intake and registry, how do people know कि program शुरू हुआ है? उनको वही तो नहीं आएगी. आपने उनको या तो फोन करना होगा या आपने फॉर एग्जांपल सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट कहेगा कि ठीक है हम लोग जो है वो मोबिलाइज करते हैं लोगों को एंड हम लोग जो है उनके एनरोलमेंट करते हैं. यू नीड सम टाइप ऑफ अ सिस्टम. आगे जब हम जाते हैं तो उसमें बेनिफिट्स आते हैं कि उनको बेनिफिट कितना देना है, बैंक के साथ करना है हमने अपना अरेंजमेंट. then we have to of course provide those benefits. ये जितने लोग काम कर रहे हैं इस प्रोग्राम को इम्प्लीमेंट करने के लिए, जिनको बेनिफिट्स मिल रहे हैं, उन सबका ह्यूमन रिसोर्स डेटा, कितने हमारे ऑफिसर्स हैं जो छुट्टियों पे गए हुए हैं, हमारी अपनी बैंडविड्थ कितनी है टू इम्प्लीमेंट अ प्रोग्राम. अगर आप कहें कि 3 लोग हैं और हम पूरे मुल्क पे प्रोग्राम चला लेंगे तो आई एम सॉरी, यू आर गोइंग टू नीड हेल्प. you all of this actually informs what you're trying to do and how you're going to do it. When it comes to terminologies, before we actually begin understanding these concepts, we need to talk about terminologies. कुछ आप सुनेंगे, कभी लोग बात कर रहे होते हैं यूनिफाइड बेनिफिशियरी रजिस्ट्री की, कभी सिंगल रजिस्ट्री की. अभी मैंने जिक्र किया सिंगल रजिस्ट्री का. कभी बात कर रहे होंगे ऑफ लेट्स से एडमिनिस्ट्रेटिव डेटा, हाईएस क्या है, पीएसएलएम क्या है. लेट्स गेट आवर कॉन्सेप्ट्स थोड़े से क्लियर. आपकी जो सिविल रजिस्ट्री होती है, दैट रिकॉर्ड्स आपके वाइटल स्टेटिस्टिक्स. ठीक है, इसका बहुत अच्छा एग्जांपल ये हर यूनियन काउंसिल के पास होती है, विच इज देन कनेक्टेड टू आपका जो नादरा का सिस्टम है. इट रिकॉर्ड्स वाइटल चीजें सच एज पैदा कौन हुआ, मरा कौन, किसकी शादी हुई, किसकी तलाक हुई. वो आपका एक सिस्टम बना रहा होता है. नादरा के अंदर भी अल्फा एंड बीटा फैमिलीज का पूरा एक सिस्टम होता है. लोकल गवर्नमेंट जो है वो डेटा उनको फीड करता है. सो फॉर एग्जांपल, एक बच्चा पैदा हुआ, अगर लोकल गवर्नमेंट ने रिकॉर्ड उसको नहीं किया वो और उसका बर्थ सर्टिफिकेट नहीं बना,
वो नादरा में कभी रजिस्टर ही नहीं हो सकेगा। एग्जैक्टली और उनका सिस्टम आपने देखा होगा लिंक है विद नादरा। सो बल्कि मैं आपको एक इसकी मजे की बात बताऊं, मेरे एक कॉलीग हैं, उनका बेटा 14 साल का हुआ, उन्होंने मुझसे एक दिन पूछा कि यार मुझे इसका बर्थ सर्टिफिकेट बनवाना है। तो आप ये सोचें कि मैं कहा आपको थोड़ा काफी देर बाद याद नहीं आया कि 14 साल गुजर गए अब तो मैंने कहा नहीं, मुझे स्कूल में जो है एडमिशन कराना है, दूसरे स्कूल में मैं डाल रहा हूँ इस वजह से। हाँ तब भी अगर इंसेंटिव एग्जैक्टली, सो देर आर सर्टन एस्पेक्ट्स जो आपको हमेशा एट द बैक ऑफ योर माइंड रखना पड़ेंगे व्हेन डेवलपिंग कोई भी सिस्टम या एनी पॉलिसी एक्शन, एंड दैट इज कॉल्ड इंसेंटिव्स। विदाउट इंसेंटिव्स मैं सुबह पलंग से भी नहीं उठता हूँ, ठीक है। अगर मेरे पास इंसेंटिव नहीं हो ना कि मैं सुबह दफ्तर आऊं काम करूं, कोई कुछ भी नहीं करता है, राइट। दैट इज समथिंग दैट वी हैव टू अंडरस्टैंड। वो आगे जाके व्हेन वी कम टू पॉलिसी डिस्कशंस उसमें चीज आएगी। ये आपका जो डॉक्यूमेंट्स होते हैं दे प्रूव, ये नहीं, ये दे आर योर लीगल प्रूफ ऑफ आईडी। हम लोग जैसे हर चीज में, हर ऑडिट पैरा में होता है CNIC, दैट इज रिक्वायर्ड बिकॉज हमें प्रूव करना होता है कि ओके दिस पर्सन इज देयर। फिर आती है सोशल रजिस्ट्री। व्हाट इज अ सोशल रजिस्ट्री एक्चुअली टेलिंग अस? इट इज वेरी डिफरेंट फ्रॉम अ सिविल रजिस्ट्री, बट अ सोशल रजिस्ट्री इज टेलिंग अस कि वो लोग, एक मुल्क बहुत सारे बेनिफिट्स दे रहा होता है अपने सिटीजन्स को, सारों को नहीं दे सकते क्योंकि पैसे हमेशा कम होते हैं, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया लगता है। एलिजिबल कौन है, दैट इज अ सोशल रजिस्ट्री एसेंशियली। इसके एग्जांपल्स भी हैं। NSCR, NSCR के अंदर व्हाई डू वी नीड पॉवर्टी स्कोर्स, ताकि हमें पता लगे कि हमने किसको देना है बेनिफिट, किसको नहीं देना। सॉरी, ताकि हमें पता लगे हमने बेनिफिट किसको देना है और किसको नहीं देना। NSCR के पास तो पूरे जितने हाउस होल्ड्स हैं, जो भी परसेंटेज ऑफ कवरेज, उन सब का स्कोर है। उनके पास मेरा भी स्कोर होगा, उनके पास आपका भी स्कोर होगा, काजी साहब का भी स्कोर होगा, बट उन्होंने अपना थ्रेशोल्ड डिटरमिन किया, उसके हिसाब से फिर उन्होंने बेनिफिट दिया। वो अब एग्जैक्टली अब हाउ डू वी डिटरमिन ये? एग्जैक्टली, इट डजंट टेल मी कि मैंने, मेरी प्रायोरिटी में ये पर्सन है या ये पर्सन है। मेरे पास फर्स्ट करें 100 रुपए थे, मेरे पास टोटल 50 लोग हैं जिनको मैंने बेनिफिट देना है, टोटल पॉपुलेशन 100 लोगों की है। हाउ डू आई चूज? इट इज अ राशनिंग टूल, एंड इट अलाउज अस टू राशन कि हमने किसको देना है। दैट इज एसेंशियली व्हाट अ सोशल रजिस्ट्री इज। सोशल रजिस्ट्री सिर्फ ये नहीं है NSCR, एक और भी थी, इसका मैंने पहले भी हवाला दिया था, एंड दैट इज जो LZ-19, जो ज़कात सिस्टम की है, बिकॉज उसके अंदर भी एनीबडी हु इज अप्लाइंग फॉर ज़कात, उनका रिकॉर्ड है पूरा। ये नहीं है कि वो एलिजिबल अभी हैं या नहीं है, दे हैव अप्लाइड फॉर इट। अगर वो LZ-19 के अंदर है, दैट इज अ सोशल रजिस्ट्री। इसके अदर एग्जांपल्स इंक्लूड RHS एंड ISAS, ये एक चिली का है और एक टर्की का है। फिर आ जाती है प्रोग्राम रजिस्ट्रीज। प्रोग्राम रजिस्ट्रीज हमने किसको बेनिफिट दे दिया ऑलरेडी, राइट? हु हैव वी ऑलरेडी गिवन द बेनिफिट टू? फॉर एग्जांपल बेस्ट कफालत UCT, वो तमाम जैसे जब मैं उसका, इफ आई रिकॉल द प्रोग्राम डॉक्यूमेंट, all ever married female women in women in a क्या कहते हैं household below a PMT threshold, ऐसा ही है ना? जो लोग, वो households who are falling in that category and are enrolled in the program, they are your program beneficiaries. Similarly, अब अगर हम PSPA का प्रोग्राम देखें, सोशल प्रोटेक्शन अथॉरिटी का, वहां पे उनका प्रोग्राम है बाहिम्मत बुजुर्ग प्रोग्राम। All the people in that program who are enrolled are your program beneficiaries, and वो आपके program data होता है। Now we come to other administrative data sets. This includes, for example, आपका टैक्स का डेटा, लैंड रिकॉर्ड डेटा, अभी मैंने बात की थी फोन कॉल्स का डेटा। This can also essentially tell you how rich or poor somebody is, right?
And if, as a matter of fact, we go back to जो हम लोगों का ओरिजिनल एक इशू था, आपको याद है कोविड पैंडेमिक, खैर कौन भूल सकते हैं, सबको याद है, बट एसेंशियली 2020 में व्हाट हैपेंड, लॉकडाउन्स हुए. As a result of those lockdowns, the government needed to reach out to people who were affected by those lockdowns, right? जब आप उन lockdowns के, you want to reach out to people who have now become unemployed because of those lockdowns, how do you identify them? NSCR में I'm sure, and I'm sure जो हम लोग के colleagues यहाँ पे हैं from this, they would verify कि इस employment का data status वो किसी के पास मौजूद नहीं है, right? वो लेबर डिपार्टमेंट के पास भी आई एम श्योर नहीं है. वो हो सकता है आपको EOBI से मिल जाए, हो सकता है आपको ESSI से थोड़ा बहुत मिल जाए जिन लोगों का कंट्रीब्यूशन आ रहा है थ्रू R2 R3 फॉर्म्स, बट उसके अलावा हाँ हो सकता है लोकल गवर्नमेंट के पास उन्होंने अगर किसी को स्ट्रीट हॉकिंग लाइसेंस दिया उनका हो, उसके अलावा कोई वो डेटा नहीं होगा. But let's imagine if we wanted to give benefits, how would we do it? We would get all of that data, right? And we would try to build that system, integrate it into our NSCR and give benefits. That's exactly what we try to do. We'll come to that later. जो आपकी social registries होती हैं, they are important in this particular part of your program design. ताकि आपको पता हो कि who are the people that you need to enroll, उनका क्या है assessment आपके पास उसके अंदर, how are you going to reach out to them, उनकी conditions क्या हैं, जैसे आपने living of standard का mention किया था. जब यहाँ पे हम आए, यहाँ से फिर आपका enrollment में program management का जो data होता है, essentially जिसको program data कह रहे थे हम लोग, वो चीज शुरू होती है. What does an ideal system look like? An ideal system looks like कि हमारे पास broader sector registries हैं जिसमें national registration bureaus, civil registration, death, income tax registries, education, health, इसको हमने अपनी social registry में डाला. यहाँ पे हमने integrated beneficiary system बनाया जिसे काजी साहब जिसका हवाला दे रहे थे from KP, हमने उसके ऊपर for example PDMA का data डाला, हमने उसको जो है then program functions के अंदर अपने integrate किया. And that comes exactly to what Madam was saying. This system, right? How to build it, everything, that is the system that you're talking about. Now you can well see how complicated it is going to be to build that system. Acha. Now, which country has actually developed the best system is silsile mein? Which is the thing that we look for, na? कि wow, ये system है जो कि होना चाहिए. वहां पे we see the best example that we have is Chile. ठीक है? Why? Because उनके 80 social safety net programs हैं, you know, जो उनके social protection and jobs के programs हैं, there are 179, all of them are linked together, right? उसके ऊपर उन्होंने और भी चीजें डाली होती हैं. When we go down, we are still doing not bad. ये हम नहीं समझे कि हम किसी से पीछे हैं, हम बहुत लोगों से बहुत बेहतर हैं. But there is, as you can see, always room for improvement. And हमें समझना है कि हमारी framework conditions में what is it that is going to work best. Now, let's look at जो Chile का system है. How does it work, right? It works essentially by having people give self-reported data on, these are things which are going to sound very familiar to you. Family composition, housing conditions, education क्या है उन लोगों की, health क्या है, occupation क्या है, उनकी income क्या है. उन्होंने एक scoring criteria बना लिया उसके हिसाब से, much like our PMT. As a matter of fact, the same people who helped them build this helped us build our NSCR. It's the beautiful World Bank. I love the institution. Then we come to उन्होंने आगे क्या किया, उसमें उन्होंने integrate किया tax का data, social security जैसे EOBI हो गया, ESSI हो गए, unemployment insurance जिन लोगों ने ली हुई है मार्केट से, pensions जिन लोगों को मिल रही हैं वो भी integrate किया,
हेल्थ इंश्योरेंस का उन्होंने इंटीग्रेट किया डेटा, एजुकेशनल स्टेटस फ्रॉम हायर एजुकेशन कमीशन अगर किसी का है वो इसमें फीड हो रहा है, प्रॉपर्टी ओनरशिप, vehicle ownership. Does this sound familiar? Because this is exactly what we tried to do जब वो COVID हुआ था and we developed a wealth profiling system. उन्होंने additionally क्या किया? उन्होंने जितने उनके कैश ट्रांसफर प्रोग्राम्स हैं, सब्सिडीज हैं, स्कॉलरशिप्स हैं, यू नो सोशल हाउसिंग है, सोशल केयर सर्विसेज एक्सेट्रा, उस सब का भी डेटा इसके अंदर डाला. And that is what results in that beautiful system that we saw pehle. Now, this is just an example, and I've taken the liberty yahan pe of taking GB as a case study. And this actually, मैं गायबाना इसका वो देना भी चाहूँगा credit, was developed by Mohammad Khan GIZ में. For those of you जो PPSPRU के साथ काम कर रहे हैं, they know उनका ये कितना favorite essentially वो diagram है. But think of a system, ठीक है, जहाँ पे we have NSCR एक तरफ, ठीक है, जहाँ पे UCTs, CCTs, हमने PPF का भी डेटा उसमें डाल दिया, बैतुल माल का भी डाल दिया, उसको हमने सप्लीमेंट किया विद नादरा, पाकिस्तान टेलीकॉम अथॉरिटी, FBR का डेटा, FIA का डेटा. FIA का डेटा, डू यू नो व्हाई इट वाज इम्पोर्टेंट? ताकि किसी को अगर अर्जेंट पासपोर्ट मिला है या किसी का फॉरेन ट्रैवल है, वो आपको पता लगता है. इट गिव्स अस इंडिकेशंस ऑफ कंजम्पशन. Then we have employees old age institution, EOBI, it's a federal thing, higher education commission. Then we have programs. We have so many programs in the provinces, right? And it is essential that we bring all of them together and we develop a system which can work together. So just imagine social welfare department, zakat and ushur department, TVET के इतने programs चल रहे होते हैं, हेल्थ डिपार्टमेंट के अपने हैं प्रोग्राम्स, एजुकेशन डिपार्टमेंट की स्कॉलरशिप्स होती हैं, लेबर डिपार्टमेंट के अपने जो ESSI है वो, एंड देन रूरल सपोर्ट प्रोग्राम्स. इसके अंदर हम और भी ऐड कर देते हैं. लेट्स फॉर एग्जांपल टेक द एग्जांपल ऑफ KP. व्हाई कांट वी ऐड इंडिविजुअल जो इंटरेस्ट फ्री लोन्स हैं? लेट्स ऐड दोस टू दिस डेटा. लेट्स मेक a data set which is beautiful, ठीक है, which tells us exactly what people are getting, who they're getting it from, when are they getting it, and which is going to essentially tell us how the system is functioning and going to answer exactly what your question was. But your question ab aata hai, which is, so what does it take to build that system? And yahan pe actually I would like to, hand over to Viranva Saab. So Mir Saab, if you're still with us, I hope you are. Otherwise, I can't do the rest. मुझे नहीं आती वो चीजें. Because, of course, I can talk about social protection, but honestly, he's the expert. And this system, how would somebody go about building it? He would probably be able to advise us best. So, Mir Saab, over to you. Thank you, Mustafa. And just checking that out that I am audible. Loud and clear. Yeah, thank you so very much. So, Mustafa, you have set the foundation very well. और थोड़ा सा आपने मेरी जमीन के ऊपर भी थोड़ा नहीं काफी पाँव रख लिया कि that how the system should be looking alike. और बहुत सारे एक बेंचमार्क मॉडल्स ऑलरेडी दुनिया में डेवलप हो चुके हैं. और विद माय प्रीवियस एक्सपीरियंस विद BISP तो कुछ सिस्टम डेवलप करने की कोशिश हमने भी किया. So मैं यहाँ से onwards, what I will be doing that I will keep it like in a very layman terms. बहुत सारा टेक्निकल डिस्कशन में शायद और jargons को कम से कम इस्तेमाल करेंगे. But at the very same point in time, we will also try to learn that what is the whole crust of an integrated social protection system is. उसको develop करने के लिए किन components की हमें knowledge होनी चाहिए और किन चीज़ों को हमें टेक केयर करना है, उनकी फाउंडेशन को ले करना है, so that we can talk about system which is globally recognized. और जिस तरह माशाल्लाह BISP की टीम ने NSCR and many other components जो कि हमारे मुल्क में डिफरेंट, जिस तरह मुस्तफा ने जिक्र किया, लोकल रजिस्ट्रीज एंड प्रोविंशियल रजिस्ट्रीज आपस में इंटीग्रेशन काम कर रही हैं.
दूसरा सिस्टम कैसे डेवलप होता है, सो आई विल ट्राई कि मैं उसको आज इस सेशन को थोड़ा रैप अप कर सकूँ। बिट ऑफ माय इंट्रोडक्शन, जो इम्पोर्टेंट है वो यही है कि आई बीन वर्किंग विद BISP दिस लास्ट 2.5 years, और उसके बाद से मैं प्राइवेट कंसल्टिंग अगेन इन सोशल सेक्टर एंड पॉवर्टी एलिवेशन के एरिया में काम कर रहा हूँ। सो वेरी क्विकली जंपिंग ऑन टुडेज टॉपिक, मैं प्राइमरली 2-3 चीजों को साथ साथ लेके चलूंगा, एंड let it be an interactive session so that we can understand each other's expectation, और हम ये भी देख सकें कि हम एक दूसरे को कहाँ पर कॉम्प्लीमेंट कर रहे हैं उन चीज़ों में अंडरस्टैंडिंग बिल्ड करने के लिए। सो अगर आप मेरे साथ चलेंगे, एंड आई बिलीव माय कर्सर इज आल्सो विजिबल ऑन योर स्क्रीन, तो आप ये देखेंगे कि यहाँ पर एक मैंने डायग्राम ऑन माय लेफ्ट इज ऑल अबाउट द डेटा मैनेजमेंट, के डेटा मैनेजमेंट के पर्सपेक्टिव क्या होते हैं। It's a profound privilege for me that while I was working for BISP, that is one of the largest data set in Pakistan, कुछ और डेटा सेट्स के बारे में मुस्तफा ने बात किया, जैसे कि नादरा एक बहुत कॉम्प्रिहेंसिव डेटा सेट है हमारे मुल्क का, which contains number of variables against every one individual in Pakistan. इसी तरह BISP भी एक ऐसा डेटा सेट है जिसके पास अराउंड 67 वेरिएबल्स हैं हर हाउसहोल्ड के बारे में, जिसके ऊपर एक फॉर्मूला विच एवरीबडी नोज इज कॉल्ड PMT, प्रॉक्सी मीन टेस्टिंग का एक फॉर्मूला उसके ऊपर इम्प्लीमेंट होता है। सो इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि वो डेटा मैनेज कैसे होता है। एक ह्यूज डेटा सेट जो कि मुख्तलिफ एरिया से, मुख्तलिफ ऑर्गेनाइजेशन से, डिफरेंट स्ट्रीम्स के थ्रू एक ही जगह पे इंटीग्रेट हो रहा हो, वहाँ पर डेटा मैनेजमेंट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सो इसका एक वेरी वाइटल कंपोनेंट इज ऑफ कोर्स द डेटाबेस, उसको किस तरह से उस डेटा को हमने सेव कर रखा है। जो लोग इस एरिया में ऑलरेडी हमारी मेरी ऑडियंस में बैठे काम करते हैं, दे नो दैट उसमें बहुत सारा ऐसा जिसको हम PI डेटा बोलते हैं, जिसमें पर्सनल इंफॉर्मेशन डेटा है, GIS डेटा है, फिर उनकी हाउस होल्ड से रिलेटेड इंफॉर्मेशन का डेटा है। उनको एक खास आर्किटेक्ट के मुताबिक एक ऐसे मीनिंगफुल स्ट्रक्चर में उसको प्लेस किया गया ताकि उसकी फैचिंग और स्टोरिंग जो है वो आसान हो सके। उसके बाद बहुत सारे डेटा गवर्नेंस के मॉडल्स जो हैं वो इम्प्लीमेंट किए गए, और किसी भी इस तरह के डेटा सेट को जो कि इतने बड़े मैग्नीट्यूड का डेटा सेट हो, उसके लिए डेटा गवर्नेंस के डिफरेंट मॉडल्स को आप करना, उनको इम्प्लीमेंट करना उतना ही इंपॉर्टेंट है जितना कि उस डेटा को किसी वेयर हाउस में सेव करना। मैं इसके साथ साथ कुछ रियल स्टैट्स भी आपके साथ शेयर करता जाऊंगा, क्योंकि इस तरह सो दैट वी कैन एट द एंड ऑफ द डे बिल्ड अ पर्सपेक्टिव कि इंशाल्लाह पाकिस्तान में BISP और PSPA बहुत सारे और इदारों ने मिलके इस डेटा को कंसोलिडेट करने के बारे में सोच रखा है। तहफ़्फ़ुज़ उनमें से एक है, पाकिस्तान बैतुल माल है जहाँ पे इंटीग्रेशन हुई, तो वो लोग इसके ऊपर क्या कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, अगर मेरे बहुत सारे दोस्त इन इदारों से यहाँ बैठे भी होंगे। सो यू एंड आई नो कि पाकिस्तान के अंदर एक डेटा वेयर हाउसिंग की एक ऑर्गेनाइजेशन जिसको हम सब लोग NTC के नाम से जानते हैं, सरकारी ऑर्गेनाइजेशन है जो कि हमें एक बड़ा स्टेट ऑफ द आर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर इन फॉर्म ऑफ देयर डेटा सेंटर प्रोवाइड करती है। सो उस इंफ्रास्ट्रक्चर को किस तरह से इस्तेमाल करके एक प्रॉपर डेटा मैनेजमेंट की एक यू नो एक स्ट्रेटजी बिल्डअप किया गया, जिसके मुताबिक उस डेटा को सेव किया जाना जरूरी है। ऑन द राइट साइड ऑफ माई स्क्रीन इफ यू सी, तो ये बहुत ही एक प्रिमिटिव सा एक मॉडल है जिसके ऊपर हम बाकी डिस्कशन को बिल्ड करेंगे। इसमें हम देख रहे हैं कि दे आर टोटल 5 कंपोनेंट्स टू इट। उनमें पहला कंपोनेंट ICT इंफ्रास्ट्रक्चर का है, जिसके बारे में मैंने भी बात किया कि सर्वर्स क्या होंगे, डेटा सेंटर्स क्या होंगे, वहाँ पर स्टोर कैसे होगी, आर्किटेक्चर क्या होगा। उसके टॉप पे बहुत सारी एप्लीकेशन है जो कि आई एम श्योर के ऑडियंस में बैठे हुए बहुत सारे इदारों के लोग BISP के साथ ऑलरेडी कनेक्टेड हैं, APIs के थ्रू इंटीग्रेट करते हैं, एक दूसरे के साथ बातचीत करते हैं, या बहुत सारी एप्लीकेशन उन्होंने होम ग्राउंड एप्लीकेशन यूज की होंगी। NSCR की फॉर एग्जांपल एक एप्लीकेशन है जो कि होम ग्राउंड एप्लीकेशन, डेटा सेव करने के लिए, लोगों के सर्विस को इम्प्लीमेंट करने के लिए। सो एक बहुत बड़ा वाइटल कंपोनेंट इज सॉफ्टवेयर एप्लीकेशंस। देन द रजिस्ट्री इन इटसेल्फ, जिसमें गाहे बगाहे PISP का बहुत सारी ऐसी रिक्वेस्ट मसूल होती हैं जिसमें आप बहुत सारे डेटा सेट्स की रिक्वेस्ट करते हैं हमसे, हमसे मुराद है BISP से,
और वो उनके साथ एक मैकेनिज्म बिल्ड होता है जिसकी वजह से डेटा टू एंड फ्रू मूव होता है। एंड ऑफ कोर्स एक बहुत वाइटल कंपोनेंट इज द एचआर, वो टीम जो इसको बिल्ड कर रही है, जो कि आप लोग हैं एक्चुअली, who write the policies, who write the procedures, that how is data is going to be made available and effective. And last but not the least, very importantly, that how the institution has laid out the foundation for the policies and procedures to follow, ताकि उस डेटा को मीनिंगफुल पर्पस में उसको इस्तेमाल किया जा सके और अपनी अपनी प्रोग्राम्स के लिए उस डेटा को वैल्यूएट करके उसके अंदर से मीनिंगफुल डेटा एक्सट्रैक्ट आउट कर दिया जाए। सो यहाँ पर मैं ज़रूर बात करना चाहूँगा that we all know that what is the difference between data and information. Data is obviously for और information जो आप इस institutional setting से उन policies और procedures को implement करके उससे extract करते हैं। So मेरे बाकी आज के सेशन में हम इसी फाउंडेशन को लेके चलेंगे और एट द एंड हम ये कोशिश करेंगे ये अंडरस्टैंड करने की कि एक इंटीग्रेटेड ISPS जो है वो कैसा दिखेगा। सो प्लीज फील फ्री टू आस्क मी एनी क्वेश्चंस, रादर रखें एंड पे हम क्वेश्चन आंसर का सेशन रखें जो हम हमेशा रख सकते हैं, बट इफ यू फील लाइक दैट वी आर हेडिंग एनीवेयर साउथ, प्लीज डू मेक मी स्टॉप एंड आस्क मी एनी क्वेश्चन that is got. So moving ahead very quickly, यहाँ पर हम थोड़ी सी बात ये करेंगे कि जो सोशल रजिस्ट्रीज हैं उनको मेंटेन करने के लिए और एट द एंड एक मीनिंगफुल पर्पस बिल्ड करने के लिए दो एक्टर्स की बात करेंगे। वन इज द पीपल विच इज आई, कोई भी एक आम आदमी इस मुल्क का, एंड द गवर्नमेंट, आप सब लोग, आप वो सारे इदारे जो कि एक एंड बेनिफिशरी को सहूलत देने जा रहे हैं। सो एक सोशल रजिस्ट्री के दो एक्टर्स हैं, एक आम जनता, आम लोग, और एक जो गवर्नमेंट इसको बिल्ड कर रही है। सो सोशल रजिस्ट्री में a common army probably would be asking a very simple question, that how can I apply and be assessed for the social protection benefits and services? It does not mean that he or she has to fall in under the poverty line का जो PMT का स्कोर है उससे नीचे उसे फॉल इन करे। तो क्वेश्चन इज कि मैं जिस तरह के स्टेट्स में या कनाडा में या यूके में आपको सोशल सिक्योरिटी नंबर मिलता है, इट डजंट मैटर दैट आप एक गुर्बत की लाइन से नीचे हैं या ऊपर है। तो पहला सवाल ये है कि क्या मैं उस प्रोग्राम को, उस रजिस्ट्री को एक्सेस कर सकता हूँ, और अगर कर सकता हूँ तो मैं वहां पर अपने किन प्रोग्राम्स के लिए फाइल कर सकता हूँ। दिस इज द नंबर वन क्वेश्चन व्हाइल बिल्डिंग एन इंटीग्रेटेड सोशल प्रोटेक्शन सिस्टम। और अगर एक आम लेमैन की जुबान से आप एक लेमैन के पर्सपेक्टिव से सोचें कि उसको इस सिस्टम से क्या मिलना चाहिए, सबसे पहला बुनियादी हक उसका ये कि उसको उसकी एक्सेस मिलनी चाहिए उस सिस्टम की, कि उसके पास वो हो। और उसके साथ साथ मैं साथ इसके एग्जांपल्स भी साथ साथ कोट करता रहूँगा। जिस तरह आपके PISP या हमारी पास्ट डिवीजन के अंदर देयर इज अ सर्विस व्हिच इज कॉल्ड 8171, एक शॉर्ट कोड। आई डोंट नो इस वक्त वो एक्टिव है या नहीं, मगर बहरहाल आई एम टॉकिंग अबाउट अ ईयर अगो, जब वो एक सर्विस अवेलेबल है जो कि आज जहाँ पर आप 8171 पे टेक्स्ट करके विद योर CNIC यू कैन फाइंड आउट दैट फॉर व्हिच प्रोग्राम यू आर एलिजिबल और नॉट। सो इस तरह की एक्सेस हर शख्स के पास होनी चाहिए, और उस हर शख्स के पास होने से मुराद ये है कि उस बंदे का सर्वे हुआ हो। सो जो शायद NSCR की डेफिनेशन में प्राइमरीली उस से शब्द भी फॉलो नहीं करता, so that means to have your data into that social registry, everyone should have the access to it. Second step, how can you identify if who I say I am, कैसे मैं आइडेंटिफाई कर सकता हूँ कि मैं किस चीज़ के लिए एलिजिबल हूँ और मेरी क्रेडेंशियल्स क्या हैं। जिस तरह अभी उस्वा ने जिक्र किया कि क्या उसकी वैलिडेशन एंड वेरिफिकेशन नादरा से हो सकती है, FBR क्या कहता है, SCCP के स्टैटस के बारे में क्या कहता है, हमारी और बाकी दूसरी लॉ एंड इन्फोर्समेंट जस्टिस से क्या उस डेटा की वैलिडेशन और आइडेंटिफिकेशन की जा सकती है, जो कि अगेन रेफरिंग इट टू द लार्जेस्ट डेटा सेट of this country, NASRA and BISP, both of them are very tightly connected with each other. यहाँ से उसकी आइडेंटिफिकेशन होती है, जैसे ही उसका डेटा वहाँ से पुल होता है BISP से, नादरा से उसकी आइडेंटिफिकेशन होती है, और ये आइडेंटिफाई कर लिया जाता है that somebody actually exists or not. तो
ये सारी आइडेंटिफिकेशन इस पूरे डेटा सेट को और इस पूरी रजिस्ट्री को मीनिंगफुल और ट्रूथफुल बनाने के लिए बहुत जरूरी है। तीसरा स्टेप, हाउ डू यू पे मी फॉर द बेनिफिट्स आई एम एलिजिबल फॉर। अभी शायद आपको मालूम है कि पाकिस्तान भर में इस तरह की जो भी पेमेंट्स खासतौर पर BISP की है या बाकी और इदारों की हैं, वो किसी न किसी तरह किसी न किसी बैंक या किसी न किसी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन के पेमेंट की जाती है। तो क्या यही एक मीडियम है उन सर्विसेज को रेंडर करने का? So probably yes. If it is all about the money transfer, there has to be a financial institution involved. वो e-wallet हो सकता है। अभी पाकिस्तान के अंदर एक बहुत बड़ा रेवोल्यूशन जो है which is around the corner, और मेरा ख्याल में बहुत सारे आप और मेरे जैसे लोग उसको ऑलरेडी इस्तेमाल भी कर रहे हैं, which is called ट्रास्ट, जो कि एक पेमेंट स्विच है बाय स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान फॉर द माइक्रो पेमेंट्स, उसका इस्तेमाल किया जाता है। तो क्या ये रेवोल्यूशन और क्या ये सर्विस एक उस आम आदमी को जो कि पॉवर्टी लाइन से बहुत नीचे है, क्या उसके दस्तरस में इसको पहुंचाया जा सकता है? और ये क्या इसके बेनिफिट्स उस अगर तो फाइनेंशियल बेनिफिट्स हैं तो क्या उसको इस हैंडल के थ्रू वहां पर पहुंचाया जा सकता है? और अगर नहीं तो और कौन से बेहतर और आसान इजी टू यूज पेमेंट मैकेनिज्म सिस्टम्स हैं जिसको ऑप्ट किया जा सकता है टू बिल्ड दिस प्रोटेक्शन सिस्टम? Beneficiary operation management. How do you determine eligibility, provide and monitor benefit services? किस तरह से उसकी एलिजिबिलिटी को आइडेंटिफाई करते हैं? पाकिस्तान में जिस तरह अभी थोड़ी देर पहले बात हो रही थी, the beautiful organization like World Bank, ADB, they have helped us to develop the PMT score mechanism ताकि हम ये आइडेंटिफाई कर सकें कि कौन किस पैरामीटर पर किस थ्रेशोल्ड पे एलिजिबल है फॉर विच सर्विसेज। सो अगर मैं फिर दोबारा से रिट्रैक करूं, अगर आप फर्स्ट स्टेप पे दोबारा आइए तो देखिए हमने वहां पर एक रजिस्ट्री को बिल्डअप करना शुरू किया। वहां से निकलते हुए जो इंडिविजुअल्स थे उनको आइडेंटिफाई किया, उनके साथ एक पेमेंट मैकेनिज्म को टाइप किया, और फिर अब हम ये डिफाइन करने आप पहुंच चुके हैं कि क्या इस बेनिफिशियरी को किन सर्विसेज के साथ उसको हम फायदा पहुंचा सकते हैं। सेकेंड इज विच इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, जो कि गवर्नमेंट को पॉलिसीज एंड प्लानिंग के लिए बहुत हेल्प करता है, इज द डेटा एनालिटिक्स। आई रिमेंबर that for many of the incidents we used to develop certain reports और इस तरह की स्टडीज बिल्ड करके गवर्नमेंट के मुख्तलिफ इदारों को, NDMAs, PDMAs और इस तरह के बहुत सारे इदारों को, पास्ट रीजन के बहुत सारे इंस्टीट्यूशंस को सर्व किया जाता है कि उनको हेल्प कर सके डिफरेंट प्रोग्राम्स को, डिफरेंट इनिशिएटिव्स को। मुझे याद है हजारा में होने वाली क्लैमिटीज और बहुत सारे ऐसे और बहुत सारे शहरों में होने वाली फ्लड की बहुत सारे इश्यूज को हमने इस डेटा और उसमें उससे मौजूद डिफरेंट एनालिटिकल टूल्स के जरिए बहुत इफेक्टिव रिपोर्ट्स को बिल्ड किया। मगर ऑब्वियसली ये सारी की सारी सर्विसेज यकीननी जरूरी नहीं है कि वो 100% लोगों तक सर्विस मिले, तो ऑब्वियसली फिर उसके लिए ग्रीवेंस रिडक्शन मैकेनिज्म का होना भी बहुत जरूरी है, व्हिच इज द आइसिंग ऑन द टॉप। वो लोग जो कि इस पूरे सिस्टम से, इस पूरे सोशल प्रोटेक्शन सिस्टम से फायदा हासिल नहीं कर सके, या अगर कुछ गलती हुई है तो देन समबडी शुड बी हेल्ड अकाउंटेबल फॉर इट। सो वहाँ पे ग्रीवेंस मैनेजमेंट सिस्टम अवेलेबल होना बहुत जरूरी है। सो यहाँ पर आई वुड अगेन thank GIZ that they helped us to develop a grievance redressal management system, which was also a two-way communication mechanism, जहाँ पर SMS, email, telephone calls, contact centers, वेब एंड मोबाइल एप्लीकेशंस, उन सबको मिला करके एक ग्रीवेंस मैनेजमेंट सिस्टम तैयार किया गया, जो कि बाकी और इदारों पर भी एक्सटेंड किया जा रहा है एज फार एज आई रिमेंबर। So ये in a nutshell, when we are channelizing the different components of integrated ISPS, वहाँ पर हम किस तरह से फाउंडेशन ले करते हैं, all the way from identifying and knowing somebody till the end कि उसको सर्विस डिलीवर किया जाए, और अगर उसकी कोई प्रॉब्लम है तो उसकी सुनवाई भी की जाए। So I am happy to answer any questions so far, or we can proceed. Right. So moving next, an interesting perspective of platform. I have tried to make the perspective very simpler
इसमें आप देखेंगे कि एक हमारे पास component on my left, it is called integrated social registry. And on my right, if you look at this, it is called integrated beneficiary registry. और अगर आप इसको अब अपने अपने इदारों के साथ इसको कोरिलेट करें तो you can very well identify कि हम इसको इसी तरह से ही काम करते हैं. So जो हमारी integrated beneficiary registry है, you and I know कि उसमें बहुत सारे components ऐसे हैं जो कि उसके डेटा को fill in कर रहे हैं. मैं अगर दोबारा से एग्जांपल दूं एनएससीआर की, हमारे पास बहुत सारी ऐसी इंफॉर्मेशन जो कि बहुत सारे ऐसे इदारों से आती है जहाँ जिनकी हमें वैलिडेशन एंड वेरिफिकेशन के लिए जरूरत होती है, और फिर वही इंफॉर्मेशन हम दोबारा से टू वे कम्युनिकेशन का इस्तेमाल करते हुए, डिफरेंट एपीआईज का इस्तेमाल करते हुए वही वही इंफॉर्मेशन दोबारा रिवर्ट बैक भी करते हैं. सो जो इंफॉर्मेशन हमें उन इदारों से मिलती है उससे ऑफ कोर्स हम एक इंटीग्रेटेड बेनिफिशियरी रजिस्ट्री को कंपाइल कर रहे हैं. Those of you who don't know, एनएससीआर पे जो दूसरा रिसर्च सर्वे होता है उसमें एक बहुत कॉम्प्रिहेंसिव डिजिटाइजेशन अप्रोच इस्तेमाल की गई और मोर देन 67 वेरिएबल्स अगेंस्ट ईच हाउस होल्ड कलेक्ट किए गए, और उनको जब डिफरेंट प्रोग्राम्स के साथ शेयर किया गया, सो दैट वाज ऑन द एपीआई एक्सचेंज मॉडल. अगर मेरे कुछ दोस्त यहाँ पर बैठे हैं जो पाकिस्तान बैतुल माल से हों या तहफ़्फ़ुज़ से हों या टीवीओ से हों, तो दे वुड नो कि उनके साथ हमने एक एक्सरसाइज एग्जीक्यूट किया जहाँ पर हम उनको ऑनलाइन एपीआई के थ्रू डेटा एक्सचेंज करने की सर्विस दे रहे हैं. सो विच एवर डेटा दे आर यूजिंग फॉर विच एवर ऑफ देयर सर्विस, उनसे हम सिर्फ यही रिक्वेस्ट करते थे कि आपने जो सर्विस उनको दी है, फॉर एग्जाम्पल बैतुल माल हैज गिवन सम व्हील चेयर टू समबडी, तो आपने हमें सिर्फ उसे एसेट की हमें आपने इंफॉर्मेशन रिवर्ट बैक कर दी सो दैट वी कैन कीप आवर रजिस्ट्री लाइव. आई अंडरस्टैंड के सर्विस रोज रोज नहीं हो सकते, और स्पेशली पाकिस्तान जैसे मुल्क में जहाँ ऑफ कोर्स फाइनेंशियल क्रंच है, वहाँ तो पहला सर्वे अगर आपको याद हो एनएससीआर का, that was ages ago, और दूसरा बहुत रिसेंटली खत्म हुआ है. And how to keep the data live is only because if you can keep this data in a dynamic state, and that was only possible. हमें दो जगहों से उसका रिस्पॉन्स आना चाहिए. एक, जो बंदा खुद हमसे वो बेनिफिट ले रहा है, और दूसरा वो तमाम इदारे जो किसी ना किसी तरह उस इंडिविजुअल को बेनिफिट दे रहे हैं. सो ये टू प्रॉन्ग स्ट्रेटजी, इसके अलावा और भी बहुत सारे एलिमेंट्स हो सकते हैं, लेकिन ये वो दो बहुत फंडामेंटल है जहाँ से डेटा अगर हमारे पास वापस पुल होना शुरू हो जाए तो हम अपनी इंटीग्रेटेड बेनिफिशियरी रजिस्ट्री को पॉपुलेट कर सकते हैं, which is going to serve as our supply side. And at the very same point in time, putting up some smart algorithms on top of it, we can revert back to all these organizations जो कि उनको सप्लाई साइड का काम कर रही है, और उनको उनकी सप्लाई को मैनेज करके उनकी उस सर्विस को जो कि वो हमसे चाह रहे हैं एज ऑफ देयर डिमांड, हम एज सप्लायर काम करें और आप लोगों को सर्व करें एज योर डिमांड दैट यू नीड डेटा on which certain variables. So it's only possible that the whole system is integrated. और अगर वो टू वे कम्युनिकेशन अगर वो नहीं हो रहा, मैं उसकी एग्जांपल ऐसे देता हूँ that if somebody has taken some financial benefit from Baitul Mal, say in any district of Punjab, और वो इंफॉर्मेशन हमारे पास शेयर नहीं होता, तो वो शख्स या वो खानदान मुझसे मेरे अनकंडीशनल कैश ट्रांसफर या कैश ट्रांसफर या एनी ऑफ अदर प्रोग्राम जो कि मेरे की हमारे ही किसी और एलाइड इदारे की तरफ से चल रहा हो, तो वहाँ से वो डबल बेनिफिट ले लेगा. तो जो टारगेटिंग वाला कॉन्सेप्ट है और डबल टिपिंग वाला जो कॉन्सेप्ट है वो फिर इफेक्टिवली इम्प्लीमेंट नहीं हो सकेगा. तो इसलिए जरूरी ये है, दिस इज नॉट रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ वन इदारा एट ऑल. वो सिर्फ बीआईएसपी की जिम्मेदारी नहीं है, या एनएससीआर की वो डेटाबेस नहीं है, अगरचे वो है, मगर उसका इंटीग्रेट होना बहुत जरूरी है, उसका बाकी तमाम स्टेक होल्डर से कम्युनिकेट करना बहुत जरूरी है. अगर वो उसका कम्युनिकेट नहीं करता तो फिर वो अगेन वुड बी अ स्टैग्नेंट डेटा. मूविंग नेक्स्ट, इन सारी चीजों को इम्प्लीमेंट करने के लिए एक और बहुत इंपॉर्टेंट कंपोनेंट इज कॉल्ड द माइक्रो सर्विस आर्किटेक्चर. ये वो तमाम छोटी छोटी एपीआई कॉल्स हैं. एपीआई स्टैंड्स फॉर एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस कॉल्स, जो कि हम आपके सिस्टम के साथ या किसी भी इंटीग्रेटेड सिस्टम के साथ उसको हुक करते हैं. और उसका एडवांटेज ये होता है कि whenever there is any update of any of the element into the database,
अगर वो आपके किसी भी प्रोजेक्ट के साथ कंसर्न है, देन यू गेट एन अलर्ट ऑन टॉप ऑफ इट, और यू शुड गेट एन अलर्ट ऑन टॉप ऑफ इट। फॉर एग्जांपल, अगर किसी के यहाँ पे पीएमटी स्कोर की कोई वेरिएशन आई है, जो भी उसकी फ्रिक्वेंसी है, उसके बाद खुदा ना खास्ता फैमिली में कोई डिजास्टर है और उसकी वजह से वो दोबारा पीएमटी स्कोर की वैल्यूएशन होती है, तो जो अपडेटेड वैल्यू है उस सिस्टम की, जो या उस पीएमटी स्कोर की, दैट यू शुड नो कि उसके साथ क्या, जिस तरह बीआईएसपी ने वेरी रिसेंटली कुछ पॉलिसीज इम्प्लीमेंट की हैं, जहाँ पर अंडर डायनामिक रजिस्ट्री डेटा अपडेट किया जा सकता है आफ्टर 6 months, अ ईयर, 2 year, 3 year डाउन द रोड। तो क्या आपके पास वो सारा अपडेटेड डेटा आएगा? यस, आ सकता है, अगर आपके साथ पास वो कंसर्न एपीआईज आपके सिस्टम के साथ इंटीग्रेटेड है। सो शायद आप ये सोच रहे होंगे कि ये तो तभी मुमकिन है जब हम भी उतने ही स्मार्ट और उतने ही टेक सेवी हों जितना कि शायद बीआईएसपी का सिस्टम या किसी और इदारे का सिस्टम है जिसने ऑलरेडी इस तरह का एक सोशल प्रोटेक्शन सिस्टम इम्प्लीमेंट कर रखा है। सो मैं बाकी सब इदारों के बारे में तो नहीं कह सकता हूँ, लेकिन अंडर द पास्ट वीक मैं वो केस स्टडी आपसे शेयर जरूर कर सकता हूँ कि बीआईएसपी ने उन एपीआईज का गेट एंड पोस्ट एक मैकेनिज्म होता है, मींस जो डेटा हमने आपको देना है, जो डेटा हमने आपसे लेना है, उन दोनों की इम्प्लीमेंटेशन टेक टीम ने वहाँ पे डेवलप करके दी थी। उसका फायदा ये था कि वो लोग, तमाम लोग जो कि जिन लोगों के पास अपनी टेक फैसिलिटी अवेलेबल नहीं, उनको किसी न किसी तरह से इस तरह पे सपोर्ट किया जा सकता है। और आप देख रहे हैं स्क्रीन के ऊपर देयर आर नंबर ऑफ, ये मैंने कुछ उनमें से आइडेंटिफाई किए हैं, लेकिन देयर आर नंबर ऑफ एपीआई व्हिच आर प्रोग्राम की एलिजिबिलिटी, उनके बेनिफिट्स, उनके डैशबोर्डिंग, पेमेंट के एडमिनिस्ट्रेशन वगैरह वगैरह। तो इन सब को हम एक, so collectively it's not only that some one institution has a system and that is called integrated social protection system. When it comes to a country, जिस तरह हमने चिली की बात किया अभी, जिस तरह से अभी मॉरिशस वाले सिस्टम की बात अभी शायद आप लोगों से की सुबह ने, और बाकी और स्पीकर्स करेंगे शायद आपके साथ। वो तमाम सिस्टम सिर्फ किसी एक इदारे की जागीर नहीं है, वो सारे लाइक चिली का बार बार जिक्र इसलिए किया जाता है कि वो बहुत ही इंटीग्रेटेड सिस्टम है। तो इसलिए है कि उसमें बहुत सारे इदारे पार्टिसिपेट करते हैं, और ये सारी एपीआईज, प्लीज रीड माय लिप्स, हो सकता है कि सारी की सारी सर्विसेज बीआईएसपी के पास ना हो, मगर मुख्तलिफ इदारों के पास डेफिनेटली अवेलेबल है। तो उनका इंटीग्रेशन होना, उनके साथ इस तरह से फाउंडेशन लेकर एक प्लेटफॉर्म के लिए वो जरूरी है, जो किसी हद तक एनएचसीआर ने कोशिश किया कि वो प्लेटफॉर्म एक प्रोवाइड कर दिया जाए जहां पर इसकी इब्तिदा की जा सके फॉर पाकिस्तान। एंट्रिंग इनटू अ लिटिल मोर स्लाइटली कॉम्प्लेक्स, लेकिन अगर आपको ये वाला सर्कल याद हो, अब से 4 स्लाइड पहले तो मैंने 5 कंपोनेंट्स के बारे में बात किया था, और वहां पर मैंने बात किया था कि एक हमारे पास एक इदारा है जिसके साथ हम जहाँ पर हम कनेक्टिविटी और डेटा को स्टोर करने का काम करते हैं। एक बहुत स्टेट ऑफ द आर्ट सोल्यूशन अवेलेबल है पाकिस्तान के पास, और अंडर द मैंडेट ऑफ गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान हम सारे वो लोग जो कि डायरेक्टली और इनडायरेक्टली गवर्नमेंट के इदारों के साथ काम करते हैं, वो अपना डेटा नॉर्मली इसी इदारे में या इनकी भी जो सर्विस सेंटर है वहीं पर प्लेस करते हैं। I duly admire the presence of very skilled HR, which is being mounted by many of the institutions here. आप लोगों की शेप में, आप लोगों के टेक डिपार्टमेंट्स की शेप में, डायरेक्टली और इनडायरेक्टली डेवलपमेंट पार्टनर्स की सपोर्ट की शेप में, ये वाली कैपेसिटी, ये वाला कंपोनेंट हम किसी न किसी तरह से पूरा कर रहे हैं। फिर एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज कि आप जो सोल्यूशन यहाँ पर इम्प्लीमेंट कर रहे हैं, क्या वो प्रोप्राइटरी है या ओपन सोर्स सोल्यूशन है? The difference between the two in a very layman terms is one is licensed and the other one is not licensed. ऑफिस आपको सालाना शायद पैसे नहीं देने पड़ते होंगे, मगर उसकी मेंटेनेंस जरा मुश्किल होती है। तो क्या उस तरह के सोल्यूशन हमारे पास माउंटेड है? और अगर किसी के पास एक ओपन सोर्स सोल्यूशन है और किसी के पास प्रोप्राइटरी सोल्यूशन है, सो ऐसा हरगिज नहीं है कि दैट टू सिस्टम्स कैन नॉट टॉक टू ईच अदर। ये सिस्टम्स बिल्कुल एक दूसरे से बेस्ड ऑन दी ओपन एपीआई आर्किटेक्चर दे कैन टॉक टू ईच अदर। चौथा बड़ा इंपॉर्टेंट कंपोनेंट जो कि हमने इस साइड में जिक्र किया था, यहाँ थोड़ी उसकी और डिटेल है, लेकिन मैं इसको बहुत डिटेल में नहीं जाऊंगा, शायद मेरी ऑडियंस बहुत टेक सेवी आई डोंट नो है या नहीं, मगर इफ देयर वुड बी एनी
in detail question, I would be more than pleased to answer the question. लेकिन on the surface level of it, हमारे पास बहुत सारी डेटाबेसेस हैं जिसमें NSCR, PSK, PBM, आउटपुट जिनका मैंने पहले भी जिक्र किया और दोबारा कि उनके साथ हमने कुछ APIs को एक्सचेंज करके एक मॉडल को इम्प्लीमेंट करने का पाकिस्तान में रवाज रखा कि आप हमारी APIs ले लीजिए और अपनी APIs हमारे साथ शेयर कीजिए, so that we can cohesively say that this is a strongly knitted social protection system. और डेटा दोनों जगह से टू एंड फ्रू हो रहा है और एट द एंड ऑफ द डे बेनिफिट ये है कि एक बंदा जो कि दो जगहों से डबल टिपिंग हो रही है और एक वो बंदा जिसको कहीं से कुछ नहीं मिल सकता, हकदार तक उसका हक पहुंचना चाहिए. हैविंग सेड दैट, ये उसी सिस्टम की एक और मजीद ग्रैनुलर डिटेल जो कि मैं एक और स्लाइड में आगे फर्दर आपके साथ शेयर करूंगा, लेकिन यहाँ पर इस स्लाइड में सिर्फ मैं आपके साथ ये शेयर करना चाहूंगा कि अगर आप लुक एट द सेंटर ऑफ दिस स्लाइड, यहाँ पर आप देख रहे हैं कि NSCR का डेटा कलेक्शन एक हुआ जो कि इस सर्वे के दौरान उसकी कुछ पेपर बेस्ड एंट्रीज थी, कुछ टैबलेट बेस्ड थी, कुछ वेब बेस्ड थी. मोस्टली द सर्वे वाज डन ऑन टैबलेट सिंस इट वाज अ डिजिटल सर्वे, मगर उसके बहुत सारे इंटरफेसेस बने जो कि शायद मैनेजमेंट के लिए और बैक एंड यूजर्स के लिए थे, और वो बहुत सारा वो डेटा जो कि पेपर बेस्ड था उसको डिजिटाइज भी किया गया और एक नेशनल रिपोजिटरी के तौर पर इसको इम्प्लीमेंट किया गया. और फिर यही रजिस्ट्री हमारी हमारी स्लाइड के लेफ्ट साइड पे वो तमाम प्रोग्राम्स जो कि इस मुल्क में चल रहे हैं उनको सर्व करती है. और अगर आप राइट साइड पे देखें तो जिस तरह नादरा है या और बहुत सारी जिसके बारे में मुस्तफा ने बात किया, और बहुत सारे ऐसे प्रोग्राम जहाँ से डेटा हमारे पास आता है, उसके साथ हमने उसको इम्प्लीमेंट उसका इंटीग्रेट करना शुरू किया. कुछ एक दो सिस्टम जो आपके राइट साइड पे दिख रहे हैं जिसमें ये आखिरी वाला है और GIS का, इसके बारे में थोड़ा और डिटेल में बात करूंगा आने वाली. इस स्लाइड के ऊपर मैं आपकी तवज्जो दिलाना चाहूंगा एक बहुत इंपॉर्टेंट पर्सपेक्टिव के ऊपर जो कि अगर आप मेरे साथ रहेंगे, व्हिच इज अगेन इन द सेंटर. अगर आप इस कंपोनेंट को देखिए तो ये बता रहा है कि उसी रजिस्ट्री के ऊपर बेस करके आपके लेफ्ट साइड पे प्रोग्राम्स हैं, राइट साइड पे आपके ब्रॉडर पर्सपेक्टिव्स हैं, लेकिन एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज जो कि सेंटर में इम्प्लीमेंट हो रही है, व्हिच इज अबाउट द पेमेंट्स. मैंने कुछ देर पहले डिस्कस किया था एक प्रोग्राम के बारे में व्हिच इज कॉल्ड रास्प, जो कि स्टेट बैंक का एक माइक्रो पेमेंट गेटवे है जिसको बहुत सारे इदारों ने इम्प्लीमेंट कर रखा है, और हम में से बहुत सारे इदारे एक और पर्सपेक्टिव को यूज करते हैं व्हिच इज कॉल्ड आसान अकाउंट, जो कि हमारे बेनिफिशियरी को पैसे लेने के लिए उसको बहुत हेल्प करता है. लेकिन एक और पर्सपेक्टिव जो है वो शायद अभी उसके बारे में इतना जिक्र नहीं किया गया, और अभी शायद पाकिस्तान का जो सोशल प्रोटेक्शन सिस्टम है वो उसको इसको देखना चाहिए. ये शायद एक आम आदमी की जिंदगी में वो ईज ला सकता है जो कि उसको घर बैठे हुए बेनिफिट मिले, विच इज आई हैव नेम्ड इट एज ई वॉलेट. और ये भी ई वॉलेट प्राइवेट सेक्टर में होगा या गवर्नमेंट ओन होगा, ये एक स्ट्रेटेजिक डिसीजन है, ये गवर्नमेंट का सरकार का लेने का डिसीजन है. बट व्हाट इज ई वॉलेट? आप और मैं जानते हैं, और हम में से इस हॉल में बैठे हुए मोरलेस हर बंदे ने इजी पैसा, जैज कैश, माईटीएम और इस तरह के बहुत सारे और वॉलेट्स का नाम सुन रखे होंगे जो कि मार्केट में अवेलेबल हैं और लोगों को छोटी माइक्रो पेमेंट्स, बिल की पेमेंट्स के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं, और पैसे एक दूसरे को भेजने और रिसीव करने के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं. सो ये मैकेनिज्म जिसका मैं अगर आपके साथ शेयर करूँ, ऑब्वियसली चिली इज एट द टॉप, टर्की, इंडिया, मॉरिशस, इन मुल्कों में प्राइवेट सेक्टर में मौजूद ई वॉलेट्स को इंटीग्रेट किया गया अपने साथ. इन पर्टिकुलर अगर मैं इंडिया की बात करूं तो आप जानते हैं वहाँ पर एक सिस्टम चल रहा है आधार कार्ड के नाम से. उस कार्ड के साथ गवर्नमेंट का अपना डेजिग्नेटेड ई वॉलेट चल रहा है जिससे लोगों को पैसे रिसीव करने में एक सहूलत फराहम की गई है. तो ये सिस्टम्स जो हैं ये इतने ही इम्पोर्टेंट हैं अगर आपने किसी बेनिफिशियरी तक कोई भी इस तरह की सर्विस को उसकी रिलीज तक पहुंचाना है. तो सबसे पहला एलिमेंट ये है कि आई अंडरस्टैंड मेरे BISP के कुछ कॉलीग यहाँ बैठे होंगे. एक कॉमन प्रैक्टिस ये है कि जब भी पैसों की डिस्बर्समेंट होनी है हम लोग बात करते हैं बैंक्स के साथ
कैंप्स लगते हैं, हमारी साइट्स पे भी लोग आते हैं और उनके साथ लंबी कतारों में बात होती है, और फिर देयर आर नंबर ऑफ अदर फ्रॉडुलेंट एक्टिविटीज जो उसके साथ एसोसिएटेड है। तो उसको काउंटर करने के लिए आई बिलीव ई वॉलेट और इट इसकी इम्प्लीमेंटेशन पॉलिसीज और प्रोसीजर्स को बड़ा फाइन डिफाइन किया जाए तो हम इन कबाहतों से बच सकते हैं। इसी पर्सपेक्टिव में ये लास्ट स्लाइड इसी डायमेंशन को एक्सप्लेन करते हुए कि इस सारी चीज को हमें एक और लेंस से भी देखना है, विच इज आवर एमएडी। मैं यहाँ पर टास्क विजन की सीनियर मैनेजमेंट को बड़ा फ्रैजाइल सीन पेश करना चाहूंगा, जो उन्होंने एक बहुत डेडिकेटेड सा सेटअप बिल्ड कर रखा है अपनी मिनिस्ट्री के अंदर एमएडी विंग के नाम से, जहाँ पर रिस्क रजिस्टर की इम्प्लीमेंटेशन भी है। इट्स नॉट दैट दे वांट टू कीप एन आई ऑन अस, बट या along with that एक accountability और transparency का एंगल जो implement होता है। But what is the perspective of having this M&E role into our integrated social protection system? अगर वहां पर ये इस तरह का M&E solution implemented नहीं है, तो you can I very well vouch for it कि उसके अंदर कितने erroneous factors जो है वो implement हो सकते हैं। For example, अगर आप recall करें आज से 1 साल पहले, 1.5 साल पहले मतलब नॉट टू नेम एक जिला जो पकड़ा गया था, जहां पर सिलिकॉन थम्स के थ्रू बहुत सारी पेमेंट्स होती थी और वो डेटा भी फेच होता था और वो डिवाइसेस भी कॉम्प्रोमाइजेस थी। देयर हैव बीन हॉक्स एंड हुज एंड लालास ऑल अराउंड कि ये कैसे हो रहा है। तो थैंक्स टू दी कंसर्न स्टेक होल्डर्स, जिसमें टास्क विजन, एफआईए और बहुत सारे इदारे लोग, लॉ एनफोर्समेंट इदारे लोग भी शामिल थे, जिन्होंने और इन पर्टिकुलर साइबर क्राइम के लोग शामिल थे, जिन्होंने इसको बहुत इफेक्टिवली एड्रेस किया। और जरूरत इस बात की पे महसूस की गई कि एक मॉनिटरिंग एंड एवेल्यूएशन सिस्टम बनाया जाना चाहिए, जिसको मेरे बड़े ही फाजिल दोस्त नवीद अकबर साहब ने जिस तरह के बीआईएसपी में एक मॉनिटरिंग सेल बना रखा है एनएससीआर की रिपोर्टिंग और उनके इश्यूज को एड्रेस करने के लिए, इसी तरह एक पूरा प्रोटेक्शन सिस्टम का एक एमएनडी सिस्टम की अवेलेबिलिटी दरकार है, जो फॉर्चुनेटली एंड आई वुड से अनफॉर्चुनेटली इज ओनली पॉसिबल थ्रू यूजिंग सम स्मार्ट टेक्नोलॉजी टूल्स। क्योंकि जब आप मैथ्स की बात कर रहे हैं तो इतने मैथ्स लेवल पे डिप्लॉयमेंट के लिए आपको ह्यूमन इंटरवेंशन से थोड़ा ऊपर होकर सोचना पड़ेगा। तो वो कैसे हो सकता है, उसकी बहुत सारी इंटरवेंशन है, वो भी जो कि शायद वो इस सेशन के लिए तो इतनी कारामद नहीं है, मगर एक प्रॉपर एमएनई फ्रेमवर्क की जरूरत है जो कि इसको इम्प्लीमेंट किया। अब मैं अक्सर एक कैन यू हियर मी? जी सर, loud and clear. We sir, उसके अंदर we have 15 minutes left, तो just wondering if उसका question answers का हम बाद में फिर time ले लेते हैं सर, जी but मैं 15 मिनट जी over to you. 15 मिनट्स आई एम सो वेरी श्योर कि मैं काफी बोर कर चुका हूँ आप लोगों को, तो मैं कोशिश करूंगा कि मैं इसको 5-7 मिनट में रैप अप कर दूं। सो मैं आपके साथ बिल्कुल एक लोकल कॉन्टेक्स्ट शेयर करना चाहूंगा, जो कि ऑलरेडी मैंने अपनी प्रेजेंटेशन में इसको काफी हद तक कवर कर लिया है, लेकिन ये एक पर्सपेक्टिव है जो कि मैं शेयर करना चाहूंगा कि अगर आप एक इंटीग्रेटेड सिस्टम को एक ओवरऑल पिक्चर में देखना चाहें कि उसको कैसा दिखना चाहिए। सो ये एक ओवरव्यू है जी, कि उसको मैंने टोटल 5 कंपोनेंट्स में डिवाइड किया है, विच इज कॉल्ड सिस्टम्स, प्रोसेसेस, एचआर, गवर्नेंस एंड स्ट्रेटजी। और फिर उनके आगे बहुत डिटेल कंपोनेंट्स ग्रैनुलर डिटेल्स में अवेलेबल है। मगर ये कितनी डिटेल में हमें इसको जाना है और इसको किस तरह से देखना है, इम्प्लीमेंट करना है, आई लीव दिस प्रेजेंटेशन डेक विद एवरीबॉडी अराउंड, और आप इसको देख सकते हैं, क्वेश्चंस यू कैन वर्ड बैक टू मी। मैं इनमें से सिर्फ 3 इंटरवेंशंस की बात जरूर करूंगा एक एक मिनट में। वन इज ये आपने जो बोल्ड देखा हुआ है, विच इज कॉल्ड नेशनल कंसोलिडेटेड
एपीआई आर्किटेक्चर, एक इसके बारे में बात करूंगा, एक मैं आपसे जीआईएस के बारे में बात करूंगा, और मैं एक आपसे टू वे कम्युनिकेशन के बारे में बात करूंगा। ये एक ओवरले आर्किटेक्चर है जो कि किसी हद तक ऑलरेडी इम्प्लीमेंटेड है, मगर इसको स्ट्रेंथन होने की जरूरत है। हर इदारे को एक काम करने की जरूरत है। क्या काम करने की जरूरत है कि अपने यहाँ अपने सिस्टम्स के, जो भी सिस्टम्स के पास इम्प्लीमेंटेड है, उन सिस्टम्स के ऊपर एक एपीआई का सेट बिल्ड किया जाए, ताकि आप इंफॉर्मेशन अपने इदारे से बाहर निकाल सकें और कुछ इंफॉर्मेशन आप ऑटोमेटिकली इदारे के अंदर रिसीव कर सकें। उससे मुराद हरगिज ये नहीं है कि आपका डेटा चोरी हो रहा है। उस डेटा को सिक्योर करने के लिए वी कैन ऑलवेज माउंट एन एनक्रिप्टेड सोल्यूशन। और क्या डेटा जाना चाहिए और क्या नहीं जाना चाहिए, बिलीव मी, बहुत सारा डेटा ऐसा है जिसको हम दिलो जान से नहीं रखते हैं और बाद में वो सीरीज में बिखरा हुआ पड़ा होता है। तो उसके ऊपर एक रेगुलेशन सेट करने की जरूरत है, that what is need to be sent out as a public information and what is the private information which cannot be sent out। तो उसके लिए ये एक आर्किटेक्चर का लेआउट मैं शेयर कर रहा हूँ। एक मैंने कहा कि मैं आपसे शेयर करूंगा एक जीआईएस की एक बहुत बड़ी डिप्लॉयमेंट ऑलरेडी हो चुकी है, और मैं अपने तमाम ऑडियंस से ये रिक्वेस्ट करूंगा कि इसको यूटिलाइज करें। एक जीआईएस का बड़ा फ्रेमवर्क डिप्लॉय हुआ है हमारे इंस्टीट्यूशन के अंदर, और वहाँ पर मैपिंग हुई हुई है हमारे हाउस होल्ड्स की। तो यू कैन ऑलवेज एड्रेस लैट लॉन्ग बेस इंफॉर्मेशन निकाल सकते हैं। उसके ऊपर हमने एक आईगा के नाम से एल्गोरिदम, ये होम ग्रोन सोल्यूशन है, ये बिल्ड किया था, वो इस्तेमाल हो रहा है, और ये डेटा अवेलेबल है फॉर रिसर्च पर्पस और फॉर एनी अदर कॉन्टेक्स्ट जो आप उसको इस्तेमाल करना चाहें। नॉट गोइंग इनटू वेरी डिटेल ऑफ इट। लास्ट बट मैंने कुछ इस इंटीग्रेटेड सिस्टम के कुछ ऑब्जेक्टिव सेट किए और उनके अगेंस्ट ये डिफाइन किया कि इनका सक्सेस क्राइटेरिया क्या होना चाहिए। अगर मुझे एक हार्मोनाइज और कोऑर्डिनेटेड हाई क्वालिटी प्रोग्राम को रजिस्ट्रेशन करवानी है, तो वो तभी मुमकिन है जिसमें जो डेटा अवेलेबल है वो स्टैंडर्डाइज्ड हो, जिस तरह के माशाल्लाह DISP का या बाकी और इदारों का डेटा अवेलेबल है और एक स्टैंडर्ड के मुताबिक बिल्ड हुआ है विद द सपोर्ट ऑफ ऑल द कंसर्न स्टेक होल्डर्स, और उसके ऊपर उनका बाय इन अवेलेबल है, एंड इट हैज अ डेली और पीरियोडिक चेक्स ऑन इट। नंबर वन। नंबर टू, वो इंफॉर्मेशन कितनी रिलायबल है और कितनी एविडेंस बेस्ड डिसीजन मेकिंग में हेल्प कर सकती है। नंबर थ्री, क्या उसके अंदर इम्प्रूवमेंट और ट्रांसपेरेंसी की एप्लीकेशन अवेलेबल है, यस, और क्या उसको हम पीरियोडिकली अपडेट कर सकते हैं। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, क्या उसके ऊपर प्लानिंग माउंट की जा सकती है, क्या उसके ऊपर हम एप्लीकेंट का डेटा और शॉक रिस्पॉन्सिव जैसे इंडिकेटर्स को उस पर एड्रेस कर सकते हैं। अगर तो ये चार पांच एलिमेंट्स एक इंटीग्रेटेड सोशल प्रोटेक्शन सिस्टम आपको ऑफर करता है, तो वी कैन डिफाइन कि प्रॉब्ली इट इज अचीविंग सम सक्सेस फैक्टर्स जो कि एक मुल्क में पॉवर्टी, टू अप्रोच राइट ऑडियंस एंड टू लूप एवरीबडी इनटू द सिस्टम, जहाँ पर हम सोशल सर्विसेज को ऑफर कर सकें, वहाँ तक पहुँचने में हेल्प कर सकता है। And there I'll stop and I would give the floor back to Mustafa, and happy to answer the questions. Thank you so much, Isab. So with this, we come to, we have 10 minutes for questions and answers, right? Sir. मेरा क्वेश्चन है, पहले तो थैंक यू वेरी मच, बड़ी अच्छी प्रेजेंटेशन थी। MBA याद आ गया, MIS की क्लास जो हमेशा सो के गुजारी पीछे बैठ के। हमारा जो सिस्टम है ना, जो हमारा प्रॉब्लम है वो ये नहीं है कि जो हमने अभी डिस्कस किया है, कोई भी डेटाबेस अच्छे से अच्छा आपको मिल सकता है, ऑन द शेल्फ, ऑफ द शेल्फ, अच्छे से अच्छा कंसल्टेंट पूरी दुनिया से मिल जाएगा। हमारा इशू सबसे बड़ा ये है डाटा कलेक्शन, और वो भी एक्यूरेट, जो कि हमें मिलता ही नहीं है। अगर आप मुझसे अभी सोशल प्रोटेक्शन से रिलेटेड, अगर हमें जो डाटा चाहिए वो होता है इकोनॉमिक डाटा, लोगों की फाइनेंशियल कंडीशन है। अगर आप मुझसे अभी पूछेंगे ना, तो मैंने खुद को इस तरह प्रेजेंट करना है कि मेरे से ज्यादा गरीब पाकिस्तान में बंदा ही कोई नहीं। ये सबसे बड़ा इशू ये है। हमें वो जो है ना कुछ टेक्निक्स बताएं जिसकी बिना पर हम जो सर्वे करें या डाटा कलेक्शन करें, लोगों से हमें करेक्ट डाटा मिले। लोग इंफॉर्मेशन देना ही नहीं चाहते। एक टेक्निक जैसे हमें MBA में हमारे
टीचर ने बताई थी, मैं एक एग्जाम्पल के तौर पर, मे बी यू आर एक्सपर्ट इन दिस फील्ड, यू टेल बेटर, कि जैसे अगर आप सर्वे कर रहे हैं, आपने खवातीन से उनकी उम्र का पूछना है, तो डायरेक्ट उम्र का ना पूछें, उनसे पूछ लें जी आपने मैट्रिक कब की थी, उससे अंदाजा लगा ले, तकरीबन आपको सही उम्र का पता चल जाए। कोई इस तरह की बातें हमें जो है ना डाटा कलेक्शन के बारे में। मैं पहले रिस्पॉन्ड कर लूं। अच्छा, मीर साहब, विद योर परमिशन, इस चीज पे थोड़ा सा मुझे आई हैव एन अंडरस्टैंडिंग, मैं खुद भी इनूमरेटर रहा हूँ। दुनिया में कोई ऐसा कंसल्टेंट नहीं है, कोई ऐसा इदारा नहीं है जो आपको बता सके कि लोगों से सच किस तरह बुलवाना है। ये ऐसी चीज है जो कि मैंने एमबीए तो नहीं किया, लेकिन इकोनॉमिक्स में भी नो कि लोग सच नहीं बताते, क्योंकि हर चीज के साथ इंसेंटिव अटैच्ड होता है। जब उनको पता है कि मैं अगर अपने आप को गरीब दिखाऊंगा तो वो दिखाएगा, क्योंकि उसको पता है उसको पैसे मिलना है। जब वो अपना रिश्ता लेके जाएगा, वो कहेगा कि मैं, वो रेंट की गाड़ी भी खरीद लेगा। यू नो, दिस इज बेसिक इकोनॉमिक थ्योरी, देयर इज नो एस्केपिंग इट। इसी की वजह से वी डेवलप द पीएमटी मेथोडोलॉजी, क्योंकि there is no system which is going to give you perfect information on an individual. कोई ऐसा मुल्क है ही नहीं जहां पे आपको बिल्कुल ये चीज मिल रही हो। अगर ऐसा होता, we would not have countries like Monaco, like Switzerland, जहां पे लोगों ने अपने पैसे छुपाए हुए होते। लोगों के इंसेंटिव्स को देखना बहुत जरूरी होता है when developing a system। अब वो चीज जो है, सिंस हमारे पास एक्यूरेट टैक्स डेटा नहीं होता, सिंस हमारे पास एक्यूरेट, लेट्स से, लोगों की सोशल सिक्योरिटी का डेटा नहीं होता, दैट इज व्हाई वी हैव द पीएमटी मेथोडोलॉजी इन द फर्स्ट प्लेस। हाउ टू improve it, how to make it more reliable is what this presentation is about, that you triangulate it with different data sources. Coming back to the COVID response, किसी को मुल्क में नहीं पता था कि हाउ टू एक्चुअली आइडेंटिफाई किसकी नौकरी खत्म हो गई है, किसकी अभी है, अभी भी किसी को नहीं पता है। व्हाट डू वी डू? वी एक्चुअली लुक एट, फॉर एग्जांपल, उनका कंजम्पशन कितना है, उनकी गाड़ी कितनी है, कौन सी है, उन्होंने फोन अपना कितना इस्तेमाल किया है। दीज आर जस्ट अप्रोक्सीमेशंस, दे आर नेवर गोइंग टू टेल अस उनकी इनकम और वेल्थ। सर, जो कोविड का, जो कि मेरा एचआर फील्ड, आई नो इट बेटर कि व्हाट वाज द रीजन। अब होता ये था कि जो लोग ले ऑफ हुए थे, कंपनियों से पूछा ले ऑफ कितने लोग हुए, कोई भी करेक्ट डाटा सिर्फ इस बिना पे नहीं दे रहा था। ऑन ग्राउंड उसके पास फैक्ट्री में वर्कर काम कर रहे हैं 1000, उन्होंने सोशल सिक्योरिटी और ईओबीआई करवाई हुई है 200 बंदों की, 800 बंदों की करवाई नहीं, वो आपको 1000 बंदे का डाटा दे ही नहीं क्यों? पाएगा। व्हाई? फियर ऑफ अकाउंटेबिलिटी कि ये डाटा कहीं incentives, और they जाके do यूज। not have the incentives to do so. Individuals का भी incentive नहीं है to provide that data, that to correct data. This is something which every country struggles with, and that is where developing a system actually comes into place. Developing a system which is based on incentives, I would recommend एक बहुत अच्छी किताब है, Why Nations Fail. You supplement it with Francis Fukuyama की है, how these institutions developed. Why is it that कल example दिया था Dr. Suhail ने and Michael Thiede ने of Bismarck, right? उसने सोशल सिक्योरिटी इसलिए नहीं शुरू की थी बिकॉज वो बहुत अच्छा आदमी था। उसने टैक्स मोनोपोली देना थी टू अपने एक दोस्त को। उसके दोस्त ने कहा मैं सारे तुम्हारे लोगों की एम्प्लॉयज की जो है सोशल सिक्योरिटी कर देता हूँ। बिस्मार्क को अपने वो टबैको सब्सिडी मिल गई, एवरीबडी इज हैप्पी। वी हैव टू लुक एट इंसेंटिव्स, और जब हम इंसेंटिव्स को अलाइन करते हैं, दैट्स व्हेन वी डेवलप अ सिस्टम, एंड दोज इंसेंटिव्स हैव टू कम विद पॉलिसीज। So I hope थोड़ी सी इस पे क्लैरिटी। If you allow me, Mustafa, शायद मैं इसमें एक कॉन्टेक्स्ट में can you hear me? जिससे ये एक बारे में ये बात करिए, फिर I'll just come back to you. जी sure. information.
सर हमारे एनएससीआर के डेटाबेस के अंदर जो क्वेश्चनियर है वो एक तो प्रॉक्सीज के ऊपर है, हम प्रॉक्सीज पूछते हैं। इवन कि उसके अंदर एक क्वेश्चन है कि आपकी वॉल का जो स्ट्रक्चर है वो भी क्या है, टॉयलेट का स्ट्रक्चर क्या है, सैनिटेशन आपका क्या है। और हमारे जो क्वेश्चंस होते हैं वो इंटरलिंक्ड होते हैं। अगर सपोज एक क्वेश्चन उन्होंने पूछा बेनिफिशियरी मे बी उसका आंसर ठीक ना दे, लेकिन जो नेक्स्ट वेरी क्वेश्चन है आफ्टर 2 to 3 वो उसके साथ लिंक होगा। अगर एक गलत उसने बताया हुआ है तो वो इंटरलिंकेज जो उसकी है ना वो ठीक कर देती है डेटा को। सेकेंडली हमारे जिस तरह इन्होंने बताया कि फेडरल रेवेन्यू के साथ अगर सपोज एक बेनिफिशियरी है एंड पब्लिक है, सॉरी आई विल नॉट से द बेनिफिशियरी, अगर वो आई है एंड ही और शी इज सेइंग कि मेरे पास कोई लैंड नहीं है, लेकिन हमारा एक तो पीएमटी चलता है, पीएमटी के ऊपर डिफरेंट फिल्टर्स अप्लाई किए गए हैं इन ऑर्डर टू एक्यूरेट दैट डेटा, ठीक है, उसकी एक्यूरेसी को और ट्रांसपेरेंट बनाने को। और सेकंड जो एजेंसी से जब उसके साथ सारी वेरिफिकेशन होती है तो वहां पे ऑटोमेटिकली आपके आ जाता है जी रजिस्ट्रेशन हुई हुई है इसकी, ये गाड़ी की, ये वहां से डेटा हमारा फिल्टर आउट हो जाता है। सेकंड क्वेश्चन था सर कोविड के हवाले से, तो आई जस्ट वांट टू ऐड कि वहां उसमें ये था कि हमारे क्वांटाइल्स हैं, लाइक जो हमारा बॉटम क्वांटाइल है 2, पहले हम लोगों ने उसको फ्लड में स्टार्ट किया क्योंकि हमारे पास कोई डेटा नहीं था। सर हम ग्रेजुअली हमने इसको किया, फिर उसके बाद हम थर्ड क्वांटाइल के ऊपर गए, थर्ड क्वांटाइल को हमने सपोर्ट किया, फिर उसके बाद हम नेक्स्ट क्वांटाइल पे गए। तो हमने इसको ग्रेजुअली अप्रोच किया, मीन किया हमने कोशिश ये की कि हम इसको यूनिवर्सल तो नहीं रख सकते थे बट ब्लैंकेट करने की कोशिश की थी हमने इसको। Objective तो वही था ना कि Yes. we wanted to reach out Yes, people inclusion in order to exactly maximize the to inclusion. maximize Yes. inclusion because we didn't want to lose out on Yes. anybody और we who didn't might have, have been yes, we didn't have that data at that time कि lay off कितना हुआ क्या, but वो हमने gradually जब किया तो उसमें inclusion हो गई थी उसमें उसकी। a lot of people were Yes, included yes. और अगर हम उसको देखें theoretically it was just social safety का extension into social insurance. Yes, Right? exactly. So Amir Saab, over to you. You wanted to say something? जी जस्ट अ क्विक कमेंट, जो मेरे दोस्त ने सवाल पूछा, फाजिल दोस्त ने, वाज वेरी 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 ऑब्जेक्टिव और बहुत ऑन द डॉट था कि जब भी सर्वे किया जाता है तो लोग इस फियर से कि मेरे पास एक मोटरसाइकिल है और मेरे घर में 2 वॉशरूम है और दीवार पक्की है या कच्ची है तो मैं झूठ बोलूंगा या नहीं बताऊंगा, ठीक। सो और जो मेरी एनएससीआर की मेरी कॉलीग हैं उन्होंने बताया कि यही एक टेक्निक है जो कि आपको सच उगलवाने में हेल्प कर सकती है। एनएससीआर का डेटाबेस जो है वो एक लायबिलिटी बेस्ड सर्वे है। वहां पर ये नहीं पूछा जाता कि आपके पास गाड़ी है, बंगला है या कुछ है, और उस बात पर उसकी असेसमेंट भी नहीं होती। वो असेसमेंट कैसे निकाली जाती है कि ये देखा जाए कि एक घर में मौजूद अगर उसकी इनकम 50,000 है और उसके घर के अंदर 10 लोग रहते हैं, वेर एज एक और घर है जिसके अंदर उसकी इनकम जो है वो 2.5 लाख है और वहां पर 25 लोग रहते हैं, तो वी कैन नाउ वेरी वेल इमेजिन कि लाइबिलिटी बेस के ऊपर किस घर की इनकम थोड़ी है और कौन ज्यादा गरीब है फॉर दैट परस्पेक्टिव। सो बजाय इसके कि आप उसे डायरेक्ट सवाल ही पूछें, तो आई वुड हम्बली सजेस्ट दैट आप जरूर उस सर्वे को देखिए विच इज अ पब्लिक प्रॉपर्टी, एंड यू कैन हैव अ वेरी फेयर आइडिया कि किस तरह से एक क्वेश्चन किसी और दूसरे क्वेश्चन के साथ कितना नाइटली इंटीग्रेटेड है कि विदाउट आस्किंग कि आपके पास एसेट्स क्या हैं और आपके पास और क्या चीज़ें अवेलेबल हैं और उससे हम सच उगलवाएं, तो उसको हम प्रॉक्सिमिंग टेस्टिंग सोल्यूशन के थ्रू किस तरह से एड्रेस कर सकते हैं। और जहाँ तक बात आपने फरमाई कोविड के दौरान इन सारी चीज़ों को, बिलीव मी दैट देयर आर स्टडीज व्हिच शो दैट the short responsiveness which was being done by BISP at that time was one of the phenomenal act by Pakistan in itself, and that got some international recognition too. And that was only because that we had that data being made available to us. Otherwise शायद from मैडम ने फरमाया कि वो फिर एक लेयर स्ट्रेटजी है कि आपने क्वांटाइल 4, 3, 2 और 1 किसको उसको किस तरह से एड्रेस करना है, मतलब उस तरह की फिर मैकेनिज्म और उस तरह की स्ट्रेटजी अवेलेबल डेटा होएगा तभी माउंट की जा सकती है। Hope I answered the question. Absolutely. Given the framework conditions, the COVID response was the best option that was available. With that, sir, I come to you for your question. Please, if you can use your mic. थैंक यू मुस्तफा साहब। पहले मैं कमेंट करना चाहूँगा, उसके पास मेरा एक फॉलोअप क्वेश्चन होगा। बिस्प के डेटा पे ही जिस तरह बात हो रही, मेरा उसमें पॉइंट ऑफ व्यू ये है कि जितनी ज़्यादा ह्यूमन इंटरेक्शन इन्वॉल्व होती है और जिस बड़े स्केल पे ये सर्वे था, तो इसका तो एलिमेंट जाहिर है कि एरर के चांस बिल्कुल वहाँ मौजूद होंगे। हम सेहत सहूलत प्रोग्राम में बिस्प का डेटा यूज़ किया था, हमारी फैमिली फार्मूलेशन थी नादरा के डेटाबेस पे। हमने हमारे कोई
2 मिलियन ट्रीटमेंट थे पेशेंट्स के, वो हमने बिस्प को भेजा कि हमें इसमें PMT स्कोर डाल के दें अगेंस्ट दीज इंडिविजुअल्स। बिस्प की तरफ से हमें इंफॉर्मेशन आई कि सिर्फ 1 मिलियन आपके बेनिफिशरीज मैप हुए, 1 मिलियन नहीं हुए। तो 50% पॉपुलेशन बिस्प के डेटा में थी, हालांकि ये सारे पंजाब के बेनिफिशरी थे और नादरा ने वेरीफाई किए हुए थे। इसके मतलब 2 मतलब हो सकते हैं, या तो बिस्प के पास सारा पंजाब का डेटा नहीं था, या CNIC में डिफरेंस था। इसी पे फॉलोअप क्वेश्चन जो मेरा है वो ये है कि जो हम इंटीग्रेशन की बात करते हैं, तो इससे अगर एक स्टेप पीछे जाएं कि जो डेटा कलेक्शन और डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन जो पैरामीटर्स यूज करती हैं उसमें यूनिफॉर्मिटी कितनी ज़रूरी है। बेस्ट हाउस होल्ड डेटा सर्वे करता है, हम सेहत सहूलत प्रोग्राम में फैमिली बेस पे आ जाते हैं, नादरा की इन्वॉल्वमेंट होती है, हमारे पैरामीटर्स डिफरेंट होते हैं जो मैयर करते हैं, कल को इंटीग्रेशन होती है तो कॉन्फ्लिक्ट भी आ जाता है। एक प्रोग्राम कहता है कि ये तो वल्नरेबल है, हम इसे कवर करेंगे, दूसरे प्रोग्राम में वो पैरामीटर्स कहते हैं कि नहीं ये तो ग्रेजुएट हो चुका है। तो इंटीग्रेशन से पहले सिस्टम डेवलप करने की तो बात हो रही है, लेकिन उससे पहले कि एक यूनिफॉर्मिटी, एक प्रिंसिपल्स, गाइडलाइंस वो ले आउट करने की कितनी ज़्यादा ज़रूरत है कि एक दफ़ा आपके पास डेटा यूनिफॉर्म हो जाए, करेक्टनेस ऑफ डेटा वाला जो मसला है वो हल हो जाए, फिर आप इंटीग्रेशन, आप सिस्टम डेवलप कर लें, लेकिन वो सिस्टम के बैकएंड भी चीज़ों में मसला हो तो वो कितनी उसकी इफेक्टिवनेस होगी। नहीं, thank you. Mir साहब, I think ये question जा रहा है to interoperable databases. Yeah, I would. So I think this is the last question. मुझे दिखा दिया गया paper with the time over. तो आप अगर ये answer कर दें on data collection standards and essentially जो standardized data collection है and processing. It's a fantastic question, I would say. और साहब ने बड़ी अच्छी रिसर्च पे की है और बहुत on the dot question है ये। So पहली बात जो आपकी ऑब्जर्वेशन है मैं उसको थोड़ा सा एड्रेस कर देता हूँ। You're so very right कि NSCR, please do pardon me, जो मेरे NSCR और BISP के कॉलीग बैठे हैं, though I am no more BISP right now, मगर एक मेरी बड़ी बहुत पर्सनल एसोसिएशन एक टाइम मैंने गुजारा है उनके साथ, तो सिर्फ उसी बिहाफ में मैं उसको आंसर करना चाहूँगा क्वेश्चन को। पहली बात ये कि जो डेटाबेस BISP के पास है, यू आर सो वेरी राइट कि वो हाउस होल्ड बेस्ड उसका एक फॉर्मेट है। जो नादरा के पास है वो सारे का सारा डेटा फैमिली बेस्ड है, अल्फा एंड बीटा फैमिली बेस्ड स्ट्रक्चर है। बट आई कैन अश्योर यू कि ये मैपिंग इज ऑलरेडी बीन डन कि फैमिली वर्सेस हाउस होल्ड का एक बैकएंड के ऊपर बिल्कुल आप सही फरमा रहे हैं कि एक इशू था, वो एड्रेस किया गया। दोनों इदारों की सीनियर मैनेजमेंट ने बैठ के इसको एड्रेस किया कि इसको किस तरह से देखा जाना चाहिए। आपको याद होगा कि मैंने प्रेजेंटेशन के शुरू में भी ये बात किया कि अगर हम एक नेशनल लेवल के इंटीग्रेटेड सोशल प्रोटेक्शन सिस्टम की बात कर रहे हैं तो डेटा से ज्यादा डेटा गवर्नेंस के एस्पेक्ट को एड्रेस करना जरूरी है, एक स्टैंडर्डाइजेशन मॉडल को ऑप्ट करने की जरूरत है। और इत्तेफाक की बात यह है कि अभी चूंकि ये दो ऑर्गेनाइजेशन जिनके पास पाकिस्तान का सबसे बड़ा डेटा सेट अवेलेबल है, BISP एंड नादरा, अगर ये दोनों एक दूसरे के साथ बात कर लेते हैं और एक दूसरे प्रॉपर सिंक हो जाते हैं तो स्टार्टिंग फ्रॉम पास सेहत या तहफ़्फ़ुज़ या TBO इन जैसे इदारों के ऊपर ही डेटा इंप्लीमेंट करके इसको बेंचमार्क किया जा सकता है। और जो बात आपने फरमाई कि डेटा अगर हमारे पास आपके 2 मिलियन में से 1 मिलियन का मिला और 2 का नहीं मिल सका, पूरे का नहीं मिल सका, तो वेरी लाइकली पॉसिबिलिटी कि वहाँ पे हो सकता है कि उस वक्त सर्वे, मुझे याद है कि मुझे नहीं मालूम कितने पुरानी बात कर रहे हैं, मगर पंजाब के कुछ सेक्टर्स का जो सर्वे था वो बहुत आखिर में हुआ है और वो डेटा शायद रिप्यूटेशन के प्रोसेस में, मैं आपसे 1 साल पहले की बात कर रहा हूँ, उससे पहले उसके बाद का मुझे मालूम नहीं है। उस वक्त तक वो शायद अभी डेटा हमारे पास आ रहा था। और जहाँ तक सर्वे नहीं हुआ वहाँ पर अगेन NSCR ने एक बहुत अच्छी स्ट्रेटजी ऑप्ट की है एंड रीड माय लिप्स के एट द एंड ऑफ द डे इट्स एन इवॉल्विंग प्रोसेस। उन्होंने स्ट्रेटजी इंप्लीमेंट हुई की है, वो डायनामिक NSCR की, कि जो लेफ्ट आउट्स हैं दे कैन ऑलवेज गो एंड कैन गेट देयर सर्वे डाटा। इसी तरह से डेटा की रिपोजिटरी को फिल कर या Thank you so much, Mir Saab. And data standards, data governance, they are going to be the backbone. और मैं again एक आपसे सवाल पूछूंगा, think about it. Do we even have a standardized definition for a household? That means that we actually don't in the country. कई जगह पे it's एक जो लोग
चूल्हा एक यूज कर रहे हैं, कई जगह पे है people who are living in the same let's say house. So it really depends. And अगर आपको एक system बनाना है, and I think you've pointed out उसके बिल्कुल ठीक कि we need standardized processes. So with that, actually, we have to close the session. Time over ho gaya, but thank you so much, everybody, for your attention. Misab, any last remarks from your side? I thoroughly enjoyed the session, G, and would love to have more questions and more interactivity with such esteemed audience. And thanks to OPML for conducting all these sessions. And looking forward for more events like these. Thank you very much. Thank you, sir, for joining us and Bitni Raat ko. And the presentation is going to be available on the portal. And also, I think if there's any questions or anything, please don't hesitate to reach out. I think the whole idea was to work together, and inshallah, we'll be better than Chile one day. And I'm sure it's going to happen very soon. So thank you and Assalamu alaikum.